પંડિતજીને પણ હું આગળ આવવા માટે ઇન્વાઇટ કરું છું. જો છોકરાઓ છે ને પ્રથમ યોગના કંઈક કેરેક્ટર કે લાઈફ કંઈક પણ તમને જે પણ છે જૈન ધર્મના વિશે થોડું ઘણું જ્ઞાન આપવા માટે અને એ પોતે જે સમજે છે એ તમને સમજાવવા માટે આવી રહ્યા છે, તો તમને સમજમાં આવે કે ના આવે વાત જીવવાની છે તો લાસ્ટમાં એ લોકોને તાળીથી બધાને પ્રોત્સાહિત કરજો. પ્રોગ્રામની શરૂઆત જ્ઞાની ગાંધી અને અન્વેષા શાહ કરી રહ્યા છે. અન્વેષા ગાંધી કરી રહ્યા છે, તો બધા એમને શાંતિથી સાંભળો. જય જિનેન્દ્ર બધાને. તો આજે આપણા સામે જ્ઞાન સિંધુ પાઠશાળાના બાળકોનો વેશભૂષાનો પ્રોગ્રામ છે. આ 3 થી 15 વર્ષના બાળકોએ ખૂબ જોશ અને ઉત્સાહથી આમાં પાઠ લીધો છે. તો પ્લીઝ બધાએ એમને તાળીઓથી પ્રોત્સાહિત કરવું. સૌથી પહેલા મંગલાચરણ માટે આવી રહી છે પિયર ગાંધી.
ચાર કશાયમાંથી એક છે ક્રોધ. ક્રોધ શું છે? તો એ જણાવવા આવી રહી છે અનાયશા મહેતા. ચલો જોઈએ એ શું કહે છે. હવે આવે છે હિયાન, જે બોલવાનો છે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો અર્થ. Thank you.
ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં આંકડા પણ લર્ન કરીને એણે કરી છે, તો એને ખૂબ જ તાળીઓથી બતાવી લઈશું. આપણા સામે હવે આવી રહી છે પ્રેરણા છે, જે બની છે એક ઇન્દ્રિય જીવ ઘાસ. પાછળ બસ બોલ. એનો કહેવાનો ઉદ્દેશ એવો હતો કે એક ગ્રાસ છે જે એકેન્દ્રિય જીવ છે, જો એના ઉપર ચાલશો તો તમે પણ 10 જીવોનો ઘાત કરો છો, તો આપણે ગ્રાસમાં ચાલવું ના જોઈએ. એક વખત એને તાળીઓથી ખૂબ ખૂબ બતાવીશું. કાર્તિક ફાગુન શાદ કે અંત 8 दिन माई नंदीश्वर सुर जात के हम पूजे प्रिय थाय. नंदीश्वर द्वीप पर मनुष्य दर्शन કરવા જઈ શકતા નથી, માટે આપણી સમક્ષ આવી રહ્યો છે નંદીશ્વર દ્વીપ એસ માનિક જૈન માનિક ગામે. જય જીનેન્દ્ર. હું નંદીશ્વર દ્વીપ છું. હું ગોળ આકારનો છું અને હું આત્મા દ્વીપ છું. મારા પર 52 પર્વત છે. આ દરેક પર્વત પર એક ગીત મંદિર છે. અષ્ટાવિક્રમ પર્વત પર સોનર્મ ઇન્દ્ર આદિ દેવો તેમના પરિવાર સાથે પૂજન કરવા આવી છે. અષ્ટાવિક્રમ પર્વત વર્ષમાં 3 વાર આવે છે અને અમે લોકો ધૂમધામથી ઉજવીએ છીએ. તમે બધા પણ અહીંયા દર્શન અને પૂજન કરવા અવશ્ય આવજો. જય જીનેન્દ્ર. તમે બધાએ સાપ સીડી તો રમી જ હશે, તો જીવન શું છે સાપ સીડીનો ખેલ એ સમજાવવા આવી રહ્યો છે પંત શાહ. जीवन क्या है? सांप सीढ़ी का के पासा उठाकर बैठना को हमारा पुण्योदय हो तो मोटी सीढ़ी पर जो पाप उदय हो तो मोटी सांप पर नंबर तो वही आएगा उदय कर्म का जो लाएगा, उदय कर्म का जो लाएगा. जो इसमें हमें क्या है करना? स्कूटी उठाकर है रखना. जो होना है वो निश्चित है. सिद्धों ने सब देखा है भाई, सिद्धों ने सब देखा. बोलो शिव परमेश्वरी भगवान की. जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है. એવું સિદ્ધ ભગવાનને જે જ્ઞાનમાં દેખાયું એ સ્વરૂપ એણે સમજાવ્યું. એક વખત એને ખૂબ તાળીઓથી બતાવી દઈએ. તો હવે સિદ્ધાર્થ આવી રહ્યો છે, જે બન્યો છે શુદ્ધાત્મા, અને એ તમને એનો બાયોડેટા કહેશે. जय जय. मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं शुद्धात्म के एक पोएम बताने वाली हूँ. शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम. मुक्तिपुरी है मेरा धाम, जहाँ मिलता पूर्ण विश्राम. जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है. काशी और जुकाम नहीं है, आदि जाति का नाम नहीं है. सबसे सुंदर है तेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम. शुद्धात्मा है मेरा नाम.
राजा ने। राजा ऋषभदेव अपनी राज्यसभा में बैठे हुए अब नीलांजना नृत्य करते आ रही है। पड़ी ना जाए तो राजा ऋषभदेव मन में विचार करवा लाग्या। यह जगत कितना नश्वर है, ये मानव कितना छोटा है, संसार में कुछ सार ही नहीं है। नीलांजना का प्रकरण देखकर मेरे मुक्ति के मार्ग खोल दिए। ये संसार कितना टंबंगूटा लगता है। देव ने नीलांजना को मेरे वैराग्य के लिए ही भेजा था, इसलिए मैं आज अभी ही दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करता हूँ और मैं करने के लिए वन में प्रस्थान करना। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार। આ સંસાર તો નશ્વર છે અને એણે જલ્દીથી જ મુનિ દીક્ષા એમણે જલ્દીથી જ મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરી તો પ્રિયલ અને ધ્રુવીશ માટે આપણે ખૂબ તાળીઓ જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરો અર્હમનું, જે એક જૈન સવાલ લઈને આવી રહ્યો છે. કાલે બોલાવો કાલે કાલે ગ્રુપમાં આવી જશે આપણે અહીંયા પોએટ બી છે, કહેવાય ને બધું ગાઈડ બી છે અને તીર્થંકરનું પાત્ર ભજવવાવાળા પણ છે, પંડિતજીઓ પણ છે. તો જોરદાર સ્વાગત કરીએ આપણે અનુભવનું, જે આપણને એક ભક્તિ સંભળાવશે. मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं
પઝલ પૂછું છું, એનો આન્સર આપજો. જ્યારે ભૂરે મેં જન્મે थे, उत्साहित रहते थे, जिन मार्ग प्रभाव नवे सतत पर रहते थे. बोलो કોણ છે આ? એકદમ સાચું. સંજીવજી પોતાનું પાત્ર બનીને આવી રહ્યો છે. સમય શાહ. अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साविस्कर अत्यंत प्रकाशमान उपकारी प्रकोष्ठ पूजा कागते मुनि चोप आय पूर्ण पाई नन्यत ज्ञानी तकात सब आज पाए परंतु पार बा पंडता बनाए So, चावल ओ मेरे जस हंगारी ओ जस हंगारी. जिस मंदिर में प्रतिमा बनने के बाद जो प्रतिमा को साफ न करे तो वो प्रतिमा मालिन हो जाए, गलती हो जाए. इसलिए आदरणीय दादा भी कहते हैं कि रोजाना दिन में एक बार प्रतिमा का प्रक्षालन होना चाहिए. पाठशाला के सब सदस्य जो पहले काम करते हैं वो दूसरे पाने का प्रयास, जो दूसरे करते हैं वो तीसरे पाने का प्रयास. हमको मूर्ति बनकर आसन करें, हमको मूर्ति बनकर आसन करें. लेकिन यदि अगर उस प्रतिमा पर प्रक्षालन नहीं डाली तो या फिर हम पर स्वाध्याय की चर्चा नहीं डाली तो हम मलिन हो जाए, हम अपवित्र हो जाए. इसलिए जरूरत है नियमित स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय. इसकी शुद्धता और पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए स्वाध्याय जरूरी है. स्वाध्याय कोई साधारण चीज नहीं है. सबने स्वाध्याय की बात की है, लेकिन ये तो आचार्य कुंदन स्वामी के वचन है भाई साहब. इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए. सब बात कहने में तो आसान लगती होगी, लेकिन मैं पूरे सदन में कहना चाहता हूँ कि दिल पर हाथ रख के व्यक्ति देखो, दिल पर हाथ रख के व्यक्ति देखो. आपने लास्ट बार स्वाध्याय कब किया? मैं व्यक्तिगत स्वाध्याय की बात कर रहा हूँ, क्लास 10 करने का नहीं. सोचो सर, नियमित स्वाध्याय चाहिए. स्वाध्याय तो थोड़ा ये कोई डिग्री के लिए थोड़ी ना है भाई साहब. लेक्चरशिप तो जीवन है, तो लाइफ है लाइफ. इसलिए मैं पाठशाला के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि इसे जीवन समझ कर ये कोई साधारण चीज नहीं है. ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमें मिल रही है. जय जिनेंद्र. इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए. સંજીવજીએ પણ સ્ટુડન્ટ્સને કીધું અને આપણે પાઠશાળાના સ્ટુડન્ટ અને દિગંબર સહિત મોક્ષ મંડળ કંઠિયાળાના બધા સદસ્યોને કહીએ છીએ કે તમે પણ તમારો દર્શન અને મોક્ષને ક્ષય કરવા માટે નિયમિત સ્વાધ્યાય રાખજો. હવે આપણે સામે આવી રહી છે સાની, જે આપણને કર્મના સ્વરૂપ સમજાવશે. जनरली हम सोचते हैं कि कोई बहुत सुंदर है तो कोई नहीं है, कोई रोगी है तो कोई निरोगी है. कईयों की बात सुनने के लिए हम तरस जाते हैं और कईयों की बात को कोई सुनना ही नहीं चाहता है. कोई मनुष्य है तो कोई दिव्यांश है, कोई नारी है तो कोई देव है, कोई एक इंद्रिय है तो कोई पंच इंद्रिय है, कोई बहुत पाप करता है फिर भी सुखी है, तो कोई बहुत धर्म तप दान करता है फिर भी दुखी और परेशान रहता है. ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं हूँ. कर्म. कर्म का मतलब कार्य क्रिया आदि. कर्म दो प्रकार के होते हैं, ग्राह्य कर्म और अग्राह्य कर्म.
जैसा बोएंगे वैसा पाओगे, जैसा भाव करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसे परिणाम होंगे वैसा ही कर्म मिलेगा। कर्म दुख का कारण है, इसलिए अगर हमें सुख की प्राप्ति चाहिए तो बाकी अभाग्य कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला प्राप्त करनी चाहिए। जय जिनेन्द्र। ખૂબ સરસ એને 8 પરિણામનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. હવે આપણે લાસ્ટ યર જે પરફોર્મ કર્યું હતું તો બધાની ડિમાન્ડ ઉપર આપણે ધ્રુવીશની જોડે લાસ્ટ યર જીલવાણી માતાની રક્ષા નથી થતી તો એની માટેના ભાવ કેવા હોય છે તો એ ધ્રુવીશ આપણને સંભળાવશે. જીલવાણી માતાની વેદના શું છે? પંડિતજી કહે છે ને કે મંદિરમાં નીચે સ્વાધ્યાય પુસ્તક પડ્યા છે, શાસ્ત્ર પડ્યા છે તો લઈને બેસો. આપણે તો લઈને અહીંયા સુધી પણ મૂકેલા છે પણ તો બી કોઈ લેવાની તસ્દી નથી લેતા. તો જીલવાણી માતાની વેદના શું છે એ આપણને સંભળાવશે ધ્રુવીશ ગાંધી. मेरा नाम है जयदवला। हाँ, अभी तो यही हाल है। हमारे ऊपर लगी धूल भी साफ करने के लिए कोई नहीं, बस कबाड़ में रख दिया। आगे ऊपर क्या हुआ किसी को लेना देना नहीं। पापा नहीं, कौन समझेंगे साहब, कौन समझेंगे? किसी को कुछ लेना देना नहीं, ये श्रावक कब समझेंगे? पंडित जी को बोलते बोलते 3 दिन हो गए तो भी अभी 10% लोग जीवाणी लेकर बैठे हैं. तो आशा रखते हैं कि कल सुबह के स्वाध्याय में जितने यहाँ पे विराजमान है वो सब अपने हाथ में ग्रंथ लेकर बैठे. आज का लास्ट था प्रोग्राम ये, तो इसके लिए मैं पंडित जी से कहूँगी कुछ 2 शब्द. पाठशाला के बच्चों के द्वारा जो ये प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं और इन्हीं प्रस्तुतियों के बहाने वो चीज़ जो याद करते हैं, वो चाहे संजीव जी का रोल किया हो, चाहे किसी ने ज्ञानरंग सवाली सुनाया, चाहे किसी ने जीवाणी की वेदना सुनाई या कर्म की विस्तार किसी ने बताया, तो वो चीज़ उनके जीवन में सदा काल उनके स्मृति पटल में रह जाती है और यही वास्तविक कमाई है ना। बाकी तो लौकिक में दिन भर जितनी भी क्लासेस कर रहे हैं वो तो चलती रहेगी, उसका तो कोई पार नहीं है, लेकिन ये जो पाठशाला है ये वास्तविक संस्कार हमारे जीवन में देती है और यही संस्कार सदा काल हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे ही पाठशाला चलती रहे, आगे बच्चे बढ़ते रहें, यही इस भावना। खूब धन्यवाद सचिन अजीत अंकल. सभी को जय जिनेन्द्र। ज्ञान सिंधु पाठशाला की सभी शिक्षिकाओं का एक बार जोरदार तालियों से हम अनुमोदन करते हैं। बहुत जोरदार तालियों से तो कुछ भी नहीं हुआ है, बच्चों में जो बीज बोए जा रहे हैं उसके लिए जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि जब शास्त्री के लिए बच्चे जाते थे तो जयपुर जो है वह प्रतिमा बनाने की नगरी है। तो वहाँ पर पहले आते तो संगमरमर के पत्थर आते थे और उसके बाद में उसकी मूर्तियाँ बनती है और देश भर में जाती है। उस तरह से वहाँ विद्यार्थियों की ये भावना रहती है, हम तो पत्थर बन के आए थे, यहाँ से स्मारक से हम मूर्ति बन के जा रहे हैं। उसी का छोटा स्वरूप में ये काम यहाँ पर हो रहा है, जिसकी बहुत बहुत अनुमोदना। बच्चों ने बहुत सुंदर परफॉर्म किया है और इस स्टेज में जो भी संस्कार उनमें रहेंगे, भले ही व्यक्त रूप में आगे सभी के रहेंगे ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन सुप्त रूप में हमेशा बने रहेंगे और कभी न कभी, जैसे अभी हम मुस्कान प्रकाशक में कह रहे हैं
कि जब कार्य होना होगा तब वो काललब्धि आएगी, और जब होनहार होगी तब होगी। लेकिन उसका बीज आप लोगों ने बोया है। बहुत बहुत अभिनंदन का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन भाई कुछ 2 शब्द बोलिए। पंडित जी ने बोल दिया है, बोलना चाहूँगा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो पाठशाला से आ रहा है। और पर्सनली लेवल पे जैसे मैं बोलूँ कि हमारे दोनों बच्चों को नहीं आता, और सिद्धांत तो मतलब थैंक्स टू धीरज भाभी और नूतन आंटी, मतलब नूतन आंटी को तो मैं साउट आउट करना चाहूँगा कि वो हिंदी आती नहीं है, और आंटी को मतलब बहुत कंफर्टेबल, लेकिन वो फिर भी इतने प्यार से और इतने अच्छे से उसको समझाती है अलग से एक एक करके, क्योंकि बाकी सब बच्चे गुजराती में पढ़ रहे हैं, वो अकेला एक हिंदी में पढ़ रहा है और उसको हिंदी नहीं आती, फिर भी इसको तो सिखाना ही है और इतने अच्छे से उसको पढ़ाते हैं। तो मतलब ये जैसे बोला कि अभी धीरे धीरे तो सीख जाएंगे, वो लाइफ टाइम पे मेमोरी में हो जाएगा। बाकी इस बार तो वो जो पढ़ते रहते हैं वो जो तो उसका कोई टॉपिक वाले जाने का मतलब नहीं है, बट जिस तरीके से सभी टीचर्स जैसे एफर्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए, मतलब बहुत ही कमेंडेबल है और हैट्स ऑफ। હા જયંતી ભાભી પણ કંઈક અચ્છા ઓકે પાઠશાળામાં જે પણ બધાએ પરફોર્મ કર્યું છે એ બધા અહીંયા આવી જાય.